नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, पाकिस्तान को भारत से डर लगता है या यूँ कहें कि पाकिस्तान को नए भारत से डर लगता है। ऐसा क्यों? आइए पहले एक वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे इस बारे में आगे बात करेंगे। 10 साल पहले दुनिया में भारत को लेकर क्या राय होती थी? कांग्रेस के राज में भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था। छोटे छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी यहाँ ये पाकिस्तान की भी बात कर रहे हमला हैं। करके चले जाते थे और तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। मोदी ने कहा, ऐसे नहीं चलेगा। भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है। भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। 2 days ago, अब ये सुनिए। Pakistan's foreign minister informed the Security Council, as well as the Secretary General and the President of the General Assembly, of India's campaign of targeted assassinations in Pakistan. This extraterritorial state terrorism is not limited to Pakistan. It has been extended to targeted killings of political opponents in Canada and attempted in the United States, and probably in other countries. The Washington Post reported that Prime Minister Modi last week told his cheering supporters, and I quote, "Today, even India's enemies know this is Modi. This is the new India. This new India comes into your home and kills you." Unquote. Madam President, I submit, this new India is a dangerous entity. It is a net provider of insecurity, not security. What is अभी तक जो आपने सुना वो प्रधानमंत्री मोदी जो एक चुनावी रैली में बोल रहे थे, फिर उसके बाद में यूएन में मुनीर अकरम जो पाकिस्तान के परमानेंट मेंबर हैं, वो यूनाइटेड नेशन में उस बात को एड्रेस करते हुए कह रहे थे। अब सुनिए जयशंकर साहब ने उन्हें क्या आंसर किया। their belief? Look at our response to 26/11 in Mumbai and look at our response to Uri and Balakot. I think nothing can tell you more clearly, more sharply. Because, at the end of the day, the armed forces are the same. The bureaucracy is the same. The intelligence is the same. So, if you look at what are the structural inputs and responses of the system, it would be the same. But what happens is, if the CPU changes up there, the output is very different. And that is really what you saw, that between 26/11, that something as big as 26/11 happened without a strong response on our side. And that, in many ways, actually led to a feeling that this country can be repeatedly punched and pushed and things happen, and that they will keep absorbing it, they will keep reacting to it, and they will protest, and the world will say, yes, very bad, now please calm down, and life will go on. Now, Uri and Balakot was meant to demonstrate that no, life will not go on, and that there will be a price. And don't think because you've done something and run away to that side that you are safe there. You will not be safe there. You will not be safe across the line of control, you will not be safe across the international boundary.
So there was a very, very clear, direct message out there. And I think the people to whom that message was intended to be sent hopefully got it. राइट। तो अभिषेक जी, यहाँ पर आपने मुनीर अकरम जो यूएन में मेंबर है पाकिस्तान के, उनको भी सुना और जयशंकर साहब का रिप्लाई भी सुना। उन्होंने बहुत क्लियरली और कैटेगरिकली बोला कि ये मैसेज जिनको भेजना था उन तक ये मैसेज पहुंच गया है। अब ये भारत ऐसा नहीं है कि आप अगर यहाँ कुछ करेंगे और अगर दूसरी तरफ चले जाएंगे तो आप वहाँ पर सेफ हैं, नहीं। तो इन चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि क्या वाकई में जो पाकिस्तान को डर लग रहा है वो एक भारत के बदले हुए अप्रोच की वजह से लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए भारत का जो बदला हुआ अप्रोच है वो बेसिकली उसका ओरिजिनल अप्रोच है। भारत दुनिया की इकलौती शक्ति है जिसने अपनी सिविलाइजेशन को बचा के रखा तुर्क और मंगोल जैसे विध्वंसकारी बार्बरिक आक्रांताओं से। ये लोग ऐसे वैसे छोटे लोग नहीं थे। हमारी हिस्ट्री में हमें और आपको तो मुगल और ये शरीफ, हमारी सारी हिस्ट्री खत्म कर दी। लव स्टोरी के नाम पे शाहजहां और वो पढ़ा दिया है, मुमताज। राम और सीता के बारे में बात कर दे हम आप कम्युनल हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम राम सीता जी के बारे में बात कर दे हम कम्युनल हो जाएंगे। बेनोवलेंट किंग में अकबर है, शिवाजी के बारे में छत्रपति महाराज शिवाजी के बारे में बात कर दें तो हम आप कम्युनल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो शिवाजी को माउंटेन रैट लिख देने से आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो जाते हो। इंडिया ने एक अजीब सी, मतलब मैं कई बार कहता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही फिलॉसफी से रन किए जा रहे थे, एक ही फिलॉसफी से रन किए जा रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जब वो भारत के एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए, उन्होंने मुसलमानों से क्या कहा था जो पाकिस्तान तोड़ रहे थे कि तुम बड़ो मूर्ख हो, तुमने हमारी जो इज्तिमाई शक्ति है, ताकत है हिंदुस्तान में कमजोर कर दी। तुम इतना सा पाकिस्तान लेकर के खुश हो गए, पूरा इंडिया ले सकते थे अगर सारे मुसलमान मिल जाते। ये उनका मीनिंग था। आपने एक आदमी को जो कि बेसिकली अरबिक थे, he was born in Mecca, ठीक है ना, और उन्होंने सिवाय इस्लामिक लॉ के कुछ नहीं पढ़ा था, उनको इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। आपका मोटिव क्लियर था। जो कपिल सिब्बल कहते हैं ना वो राज्यसभा में, मुझे पता है आपका मोटिव क्या है, आप नाम से पहचानना चाहते हो। उनका भी मोटिव हमें पता है, किस चीज से नफरत करते हो तुम, मोटिव आपका भी पता है हमें। और आपने ऐसा जंजाल खींच दिया है कि यदि इसमें से कोई निकलने की बात करे तो आप कहोगे बिना हिंदू मुस्लिम के बात नहीं कर सकते। तो भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसको कहने में आपके पेट में क्यों दर्द हो जाता है? हिंदू राष्ट्र से क्या हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र में अगर कोई कमियां रही होंगी तो क्या उसको ठीक नहीं किया जाएगा? क्या हम समाज में कोई कुरीतियां रही होंगी तो उसको ठीक नहीं किया जाएगा? हिंदू राष्ट्र से हमारा कहने का मतलब है कि हमारे पुरखों की भूमि है। तो आपने जो है वो जो भारत में था, जब गुरु गोविंद सिंह जी की जो वो किताब है उसको ही आप पढ़ लें। उन्होंने कहा ये तुर्कों को निकालना है। आपने जो गुरु गोविंद सिंह साहब लिख रहे थे कि तुर्कों को निकालना है यहाँ से और हिंद को हमें फ्री करना है, उनको आपने जो है वो हिस्ट्री में जगह ही नहीं दी। और जिनको गुरु गोविंद सिंह जी निकालने की बात कर रहे थे, उन तुर्कों को, उन मुगलों को आपने भारत का आधुनिक निर्माता बना दिया। तो यदि आप मुगलों को अपना आधुनिक निर्माता भारत का मानते हो तो फिर महाराज छत्रपति शिवाजी हो गए, आप गुरु गोविंद सिंह जी हो गए, ये सब आपके दुश्मन हो गए। क्योंकि ये संघी थे ना भाई, जो मुगलों को अपना नहीं माने उसी के लिए तो हमें आर्यन थ्योरी और ये थ्योरी और पता नहीं क्या क्या बढ़ा दिया है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है वो अजीब सी, मतलब इतनी इस देश के साथ इंटेलेक्चुअल टेररिज्म किया गया, जो 9 करोड़ हिंदुओं की हत्या की गई या 90 करोड़, उससे भी ज्यादा जो भयानक अत्याचार इस देश पे किया गया कि इसके साथ इंटेलेक्चुअल टेररिज्म किया गया 1970 के बाद, 1947 का सतत। आपके स्कूल कॉलेजेस में वो विद्यार्थी पढ़ते हैं जो अपने खुद की हिस्ट्री के बारे में जानना नहीं चाहते। आप उनसे बोलिएगा वो आपको काट खाने को दौड़ेंगे, समझने के बाद भी वो आपको काट खाने को दौड़ेंगे। क्योंकि पढ़ करके मेजॉरिटी जनता जो पढ़ती है उसी को सच मान लेती है, उसके अंदर क्रिटिकल एनालिसिस करने की क्षमता बहुत कम लोग में होती है। जो ये पढ़ पाए कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है और क्या नहीं लिखा है और क्यों नहीं लिखा है, ये क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। तो जो एस जयशंकर साहब कह रहे हैं कि ये जो नया भारत है वो बेसिकली, नया भारत क्या कहता है?
मुगल हमारे नहीं थे। ये बात तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे थे, उनकी किताब में लिखा हुआ है कि तुर्कों को हिंद से निकालना है। ये बात तो छत्रपति महाराज शिवाजी ने जब काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया उसके बाद उन्होंने तलवार उठाई, उन्होंने कहा इनफ इज इनफ, और फिर उन्होंने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। और आपने पढ़ा दिया वो मराठी थे, किसी की वो अपने कुल वंश के लिए और लोकल इंटरेस्ट के लिए महाराज छत्रपति शिवाजी लड़ रहे थे, और आपने डिवाइड कर दिया। जैसे लोगों के अब दिमाग में रहता है कि वो तो महाराष्ट्र के कोई छोटे से होंगे। महाराष्ट्र तो आज की प्रोडक्ट है भाई। रानी लक्ष्मीबाई बनारस की थी। कानपुर का जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है उसका नाम है छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज। डिवाइड करके रख दिया। ये नया भारत ही पुराना है, और नया भारत अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ेगा, और ये लास्ट लड़ाई होगी। हम तलवार से लड़े, हम बंदूक से लड़े, हम बर्बरी जो मुगलिया लोग थे, इंसान नहीं थे वो। आपने अभी इजराइल में देखा, वो लड़कियों को ऐसे परेड करा रहे थे, वो खून से लथपथ थे, उनका रेप किया और एडमिट कर रहे। ये हमारी परंपरा नहीं है, और ये परंपरा इन्होंने हमारे में डाल दी कि हम ऐसा करते हैं। इजराइल वाला वीडियो आपने देखा होगा ना, जो 13 मिनट का वीडियो है उसको काट करके 3-3.5 मिनट का रिलीज किया गया, क्योंकि लोग बोले थे वो 13 मिनट का देख लेते तो आपको बेहोशी छा जाती, इतनी बर्बरता। और इसको आप कह रहे हो कि ये मुगल हमें सिविलाइज करने आए थे। किताबों में उनके लिखा है। कल मैं कहीं सुन रहा था, मैंने इब्न बतूता नहीं पढ़ी, मैंने कहीं सुन रहा था, उन्होंने इब्न बतूता की बातचीत की। उसमें वो बता रहे थे कि इब्न बतूता की किताब में लिखा है कि खुरासान में ये जो बेचारी हमारे यहाँ से लड़कियों को ले जाके बेचते थे, वो ठंड के मारे वहां पहुंचते पहुंचते मर जाती थी। उनके अंगों की जो टाइटनेस के हिसाब से उनके प्राइस लगते थे। ये भारत की संस्कार है। ये नया भारत है जो अपनी पुरानी पहचान लाएगा। ये नया भारत छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत है। ये नया भारत गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का भारत है। ये नया भारत महाराणा प्रताप का भारत है, जिन्होंने आक्रांताओं से लोहा लिया और अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को उन्होंने सुरक्षित रखा। ये लास्ट लड़ाई होगी, क्योंकि ये लड़ाई अब ऐसी हो चुकी है कि अगर युद्ध करने जाइएगा आप, तो आप कोई भी भारत का दुश्मन बच नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास भी एनहाइलेटिंग वेपन है, एनहाइलेटिंग। इसलिए जो तीर और तलवार वाली भाषा थी वो खत्म हो चुकी है, बंदूकों की भाषा खत्म हो चुकी है। अब भाषा चलेगी जो है इंटेलेक्चुअलिज्म की, तर्क की, न्याय की। और उसमें जो लोगों ने हमें कह दिया हमारे यहाँ शूद्रों के साथ ऐसा व्यवहार होता था, वैसा व्यवहार होता था, कि ब्राह्मण ऐसे थे, ब्राह्मण वैसे थे। कब ब्राह्मण ने लिखा कि भाई कुछ लोग किए होंगे, उसको मैं डिनाई नहीं करता। और जो लोग ऐसा किए हैं वो अपनी वजह से किए, वो किसी फिलॉसफी के तहत नहीं किए, वो सोशियोलॉजी की मिस्टेक थी। और ऐसा करने वालों के लिए हम शर्मिंदा हैं, और जिनके साथ ऐसा हुआ उनसे हाथ जोड़कर क्षमा भी मांग रहे हैं। लेकिन ये हमारी फिलॉसफी नहीं थी। हमारी फिलॉसफी थी सर्वे संतु सुखिना। उसमें लिखा गया सर्वे ब्राह्मण सुखिना, सर्वे क्षत्रिय भवन्तु निरामया, नहीं लिखा गया उसमें। जब लिखा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और तुम पढ़ा रहे हो कि लड़कियों के वक्ष को ढकने का नहीं होता था, ये कहां पे हो गया? अगर मनु का ही लाव चलता था तो मनु तो लिख रहे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो कि लड़कियों को कहीं केरल के किसी हिस्से में ब्राह्मण जो है वो वस्त्र नहीं ढकने देते। ये हमारा कल्चर नहीं। जो आपने वो 13 मिनट का वीडियो क्लिप देखा, ये वो कल्चर था, और जिन्होंने इसको हमारा कल्चर बना दिया। भगवान श्री राम भी युद्ध किए, भगवान श्री राम ने युद्ध किया, उसमें युद्ध का वर्णन है। एक स्त्री के भी अगेंस्ट में कुछ उन्होंने किया, मंदोदरी को लाकर के भारत की बाजार में बेचा। रामायण में लिखा है कि तुम स्लेव ले सकते हो। ये वो भारत है जो अपनी एंशिएंट पहचान के लिए लड़ रहा है। हम सबको अपना मानते, ये हमारी गलती है। ये भारत, अभी तक जो भारत शासन किया जा रहा था वो उनके द्वारा, जो मुगलों के अपना शासन मानते थे। भारत और पाकिस्तान में एक ही शासन चलता था, एक ही मानसिकता के लोग थे। पाकिस्तान भी कहता है मुगलों की वंशज हैं, और यहां भी कहा जाता था कि मुगलों ने ही भारत को बनाया है।
इस समाज में, हमारे भाई बहनों को पढ़ा दिया कि आप देखिए इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। टू नेशन थ्योरी के नाम पे देश टूटा, उसके बाद टू नेशन थ्योरी को मरने नहीं दिया यहाँ के कम्युनिस्टों ने या उस टाइप के माइंडसेट के लोगों ने। उसी टू नेशन थ्योरी को कह दिया ये गंगा जमुना तहजीब है। टू नेशन थ्योरी का अगर उर्दू आप रूपांतरण करेंगे, उसकी तर्जुमाई करेंगे, तो उसका वर्ड होगा तो गंगा जमुना तहजीब। ये टू नेशन थ्योरी है, यानी यहां का कन्वर्टेड मुसलमान भारतीय नहीं है। ये साला सिर्फ इंडिया का फिनोमिना है। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में यह फिनोमिना पाया जाता है। आप जब से ध्रुव रावटी को देखें, उसके जो व्यूअरशिप है वो इसीलिए वो उसी वहीं के लोग सुनते हैं, वो उनको कैटर करता है। और ये ध्रुव रावटी कोई नहीं, हम तो ऐसे 50 को सुनते आए, हम तो किताबों में भी पढ़ते आए हैं। तो लेकिन जो बाहर का जो लोग है वो जब ध्रुव रावटी को सुनता है, अच्छा देखो यंग आदमी ऐसा कह रहा है, भाई उसको राम पुनियानी जी को हम सुनते आए, हमारी किताबों में यही लिखा हुआ है कि, और वो सीताराम गोयल जी ने या कोई कौन थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, और नेहरू जी के समय में उन्होंने किताब लिख दी कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर इसलिए तोड़ा था क्योंकि भैया वो जो लड़की थी कोई, उसकी रानी का कुछ जेवर जो था पुजारी ने चुरा लिया, तो उसके गुस्से में उसने मंदिर तोड़ा। अच्छा, मैं जब मासिर आलमगीर, देखिए झूठ, ये लोग झूठ को देश का सच बताना चाहते। मैंने जब मासिर आलमगीर पढ़ी, मैं हैरान हो गया। उसमें वो कह रहा है कि, उसमें लिखता है वो कि ब्राह्मणों से प्रभावित होकर लोकल हिंदू और मुसलमान आते थे, उनकी किताब को, उनकी झूठी और घटिया किताब को पढ़ने आते थे, और इससे जहांपना बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा भारत का इस्लामीकरण जल्दी करना है, सब स्कूलों को तोड़ दो, गुरुकुलों को, और सारे मंदिरों को तोड़ दो। अगर ये जो ये लिख रहे थे, ये हमारे यहाँ के इतिहासकारों ने लिखा है, भारत के इतिहासकारों ने, कि औरंगजेब ने मंदिर इसलिए तोड़ा। और उसके बाद ये पढ़ाते कि जो भी राजा होता था वो मंदिर तोड़ता था। हमने तो नहीं सुना भगवान राम ने जब युद्ध में गए तो कोई मंदिर तोड़ा होगा, लिखता है ना, कोई डिस्क्रिप्शन तो आता। और कैसे मंदिर तोड़ते, जब शंकर जी का जो भक्त राम जी भी थे और शंकर जी के भक्त रावण भी थे। यहां पे भगवान को लेके कभी लड़ाई नहीं हुई, यहां पे इसीलिए धर्म की युद्ध हुई। भगवान श्री कृष्ण को नारायण मानने के लिए तो भीष्म पिता भी मानते थे उनको नारायण, और उनको अर्जुन लोग भी नारायण मानते थे। दुर्योधन भी जानता था कि वो नारायण है, कर्ण भी जानता था कि वो नारायण है। भगवानों के लेके लड़ाई नहीं हुई, सत्य असत्य की लड़ाई हुई, मॉरल की लड़ाई, मोरालिटी की लड़ाई। ये वो भारत है, ये गीता का भारत है। भाई हमने कब कहा कि तुम्हारा रिलीजन गलत है? तुम्हारा रिलीजन गलत है, तुम हमको अपने हिसाब से क्यों चलाना चाहते हो? मेरी समझ में नहीं आता। मेरा घर में मेरे नियम चलेंगे, और मेरा नियम कहता है कि सब ठीक है। तुम्हारे में अगर लिखा है कि तुम गलत हो तो ये तुम्हारी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। कंपैरिजन तुम्हारी आइडियोलॉजी वर्सेस मेरी आइडियोलॉजी का होगा। तो हमने कब कहा किसी का भगवान गलत है? कब हम किसी के भगवान के नाम पे हमने कहा कि आओ चलो लड़ाई लड़ो? ये तुमने लिखा। तुम्हारे यहाँ के स्कॉलर्स बोलते हैं कि हमने भैया वो भेजा कि हिंदुओं या तो कन्वर्ट, मतलब दुनिया भर के लोगों को कि या तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो लड़ लो, या तो जजिया देख के हमसे नीचे रख लो। ये हमने भेजा था दुनिया भर में, और इसलिए कि खाली तुम्हारा भगवान हो, तुम्हारा कल्चर, जो कि सदियों लगते हैं, हजारों साल लगते हैं कल्चरों को डेवलप होने में, और कल्चर उस इलाके के पेड़ पौधे, समुद्र, पहाड़, जहां जो जैसा होता है उस हिसाब से उसके कल्चर डेवलप होते हैं। रातों रात सब कल्चर खत्म और अरबी कल्चर ही दुनिया का कल्चर बन जाएगा, और ये तुम अटेम्प्ट करना चाह रहे हो। अब पाकिस्तान, उसका कोई पूछे तो एक ऑडिट तो करो कि इंडिया में एडवेंट ऑफ इस्लाम बच्चों को पढ़ा दिया, क्या कंट्रीब्यूशन है? ताजमहल, कुतुबुद्दीन ऐबक का वो है, उसपे लिखा हुआ है कि कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, जहां पे लिखा है कि यहाँ पे 1600 या 36 जैन मंदिरों को तोड़ के, उसके बाद भी तुम पढ़ा रहे हो कि ये कंट्रीब्यूशन है। उसके लिए इतनी हत्याएं की गई, और उसके बाद ये नहीं, इन्होंने इसके मुगलों को सही साबित करने के लिए जो अटैक किया, एज अ लॉयर आई कैन अंडरस्टैंड, वो इतना विसरल अटैक था कि इन्होंने हमारी कल्चर को अटैक कर दिया। इन्होंने कहा ना तुम्हें खाना बनाने आता है, ना तुम लोग यहाँ के लोग हो, तुम बेसिकली बार्बरिक लोग हो, तुम्हें कुछ नहीं आता था। मुगलों ने तुम्हें सिविलाइज किया, हमारी तक्षशिला छीन ली, नालंदा छीन ली, जो सदियों हजारों साल से थी। कह रहे तुम्हें कुछ नहीं आता, क्योंकि बाबर ने अपनी बाबरनामा में लिख दिया कि यहाँ के लोगों के पास किताब वो नहीं थी, किताब नहीं था, यूनिवर्सिटी नहीं था। तेरे पास क्या था भाई? एक वो तुर्क जो कि वो रहते हैं, जिनको बेडवाइन कहा जाता है, अरबिक कल्चर से उन्होंने वो वर्ड लिया हुआ है। बेसिकली वो खाना बदोश लोग हैं, इतनी हार्श लाइफ में रहते हैं।
उन्होंने बता दिया ये लोगों ने सिविलाइजेशन दी। जो एक टेंट लगा के दूसरी जगह टेंट बनाता हो, जहां पे कोई आर्किटेक्चर का वो पाया नहीं जाता है, वो यहाँ पे आके आर्किटेक्चरल वो हो गए जीनियसेस। और भारत की मतलब सोचिए, ये जो राम मंदिर बना इसमें सीमेंट, गारा, सरिया का उपयोग नहीं हुआ है। आपने हमारी शिल्प शास्त्र को, हमारे साइंस को, विज्ञान को, सबको खत्म कर दिया। और हमारी एक कमी जो सोशियोलॉजिकल थी, थ्योरी फिलोसफी की नहीं थी कि हमारे यहाँ पे कोई जात व्यवस्था में कमी की गई होगी, लोगों ने दुष्टता का काम किया होगा। उस जात व्यवस्था को आपने भारत की डीप फिलॉसफी से रिप्लेस कर दिया। और ये दिखे बिना कि जो लिख रहा है उसने कभी शूद्र के लिए अलग कोई फिलॉसफीज नहीं दी कि भैया शूद्र जो है वो तो बीमार रहे और ब्राह्मण बड़ा सुखी रहे। अगर कोई सूत्र बने होंगे, नियम बने होंगे, वो अलग होती हैं, फिलॉसफीज अलग होती हैं। सो जी, तो नया भारत पाकिस्तान को यही कह रहा है कि हम मुगलों को हरा चुके हैं। ये तुम अफगानिस्तान को कहते हो कि इट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, यू आर ब्लडी नॉनसेंस। इंडिया इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। इसने मुगलों को यहीं पे गाड़ दिया, इंडियंस ने अंग्रेजों को गाड़ दिया, इंडियंस ने यहाँ से जितनी यूरोपियन से बड़ा ताकतवर तो कोई नहीं है ना। यूरोपियन से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, क्योंकि तुर्कों ने दुनिया को जीता, फिर तुर्कों को जीतने वाला काम, तुर्कों को तुर्के के घर में जाके जीतने का काम तो रशियंस ने किया। सारा सेंट्रल एशिया तो आज रशियन बोलता है, उनकी भाषा गायब कर दी। यूं इतने बड़े लड़ाके थे, भाषा तक गायब कर दी, सब रशियन बोलते हैं। इंडिया में आज भी हिंदी, संस्कृत, मराठी, तमिल, भोजपुरी, उड़िया, बंगाली, कश्मीरी बोली जाती है। बराबर। इंडिया इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, नॉट ब्लडी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोग चेंज हो गए, हम नहीं चेंज हुए। बोलिए। बराबर। और अभी जो हम लोगों ने वीडियो देखा उसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट बात सामने निकल के आई कि पहले जब इस तरह के हमले भारत पर हुए, अभी हम लोग अगर मॉडर्न समय की बात करें, अभी हालिया समय की बात करें, तो हम लोग सिर्फ उसकी कड़ी निंदा कर दिया करते थे या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को डॉक्यूमेंट्स और डोजियर दे दिया करते थे। पर मुंबई जैसा बड़ा हमला, जो कि भारत के इतिहास के सबसे बड़े हमलों में से एक है, उसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं हुआ। और यही चीज़ नरेंद्र मोदी जी ने उनके भाषण में कही कि आज हम अगर ऐसा कोई हमला होता है तो हम घर में घुसकर मारते हैं। और यही चीज़ पाकिस्तान ने 2 बार एक्सपीरियंस करी, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक के फॉर्म में और एक बार एयर स्ट्राइक के फॉर्म में। ये चीज़ शायद पाकिस्तान को एक्सपेक्टेड ही नहीं थी कि भारत की तरफ से ऐसी कोई स्टेप होगी। और इसलिए रोते हुए पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन में ये चीज़ कह रहा है कि ये नया भारत जो है, क्योंकि हम मारते रहे वो चलेगा, पर हमारे एक्शन के ऊपर भारत अगर कोई एक्शन कर दे तो वो हमको नहीं चलेगा। तो ये सोच जो है पाकिस्तान की, ये उसको कहीं ना कहीं भारत के अगेंस्ट या भारत के लिए एक डराने वाली सोच, फीलिंग आ रही है कि अब ये तो रिएक्ट भी करने लगे, पहले तो करते ही नहीं थे। तो ये जो एक डिफरेंट जो थॉट प्रोसेस आई है भारत की, ये भारत को यहाँ से एक आगे ले जाने में या फिर एक वर्ल्ड के तौर पे एक बेहतर पोजीशन क्रिएट करने में या पावर बनने में कितनी हेल्प कर सकती है? देखिए, अगर ऑनेस्टली मैं मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और मुझे पता है मोदी जी ने जो भारत में योगदान दिया है, उन्होंने भारत की दशा दिशा बदल दी। लोग रोजगार और सड़क वाले पूछते वो मूर्ख हैं, उन्होंने भारत की चेतना बदल दी, भारत का कॉन्शियसनेस बदल दिया। द मैन इज अ गिफ्ट टू इंडिया in general and India specifically and humanity in general। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने पाकिस्तान को पहले जवाब नहीं दिया था। इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान को तोड़ करके दिखा दिया था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ये एक बीमारी सेक्युलरिज्म की भारत में आई, क्योंकि देखिए उसके बाद की चीजें हो रही थी। 1971 की बाद जो वॉर हुआ, वॉर के बाद जो इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, सेक्युलरिज्म को ला करके भारत, क्योंकि 1971 के वार से ये जो रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म था, क्योंकि विक्ट्री को एज ए हिंदू विक्ट्री देखा जा रहा था,
कि 93,000 अगर आप मुगलों के वंशज हो, आपके पास सारे बड़े बड़े योद्धा, पंजाबी योद्धा, पठानी योद्धा और भी जो योद्धा रहे होंगे सब आके लड़ रहे थे, क्योंकि आप तो इस्लामिक जंग लड़ रहे थे, जिहाद लड़ रहे थे। डॉन में तो आ रहा था कि जिहाद अगेंस्ट इंडिया, so you fought a jihad. It was basically an opportunity to conduct a गजवा हिंद, और वो तो फिर वर्ड ऑफ गॉड होना चाहिए। गजवा हिंद जो है वर्ड ऑफ गॉड है, बिकॉज वो हदीस है। तो आप गजवा हिंद में फेल नहीं हुए, 93,000 सैनिकों ने पतलूने ढीली कर दी। तो यहां की वो जो लॉबी थी उसने इंदिरा गांधी के फॉर्म में ये देखा कि ये तो हिंदू रिवाइवलिज्म हो जाएगा, और जो मैंने पिछले 35 साल तो उसके बाद उन्होंने क्या किया राहुल जी, कि उन्होंने शुरू किया नॉनसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। फ्रॉम द स्टेट नहीं लिया, अमेरिकन सेक्युलरिज्म ले लिया कि देयर शैल बी नो रिलीजन ऑफ द स्टेट, state shall not create a religion. America is a different, America is a land of immigrant, India is not a land of immigrant. जो भी ये कहता है, चाहे वो डेजिग्नेशन पे बैठा हुआ, वो अव्वल दर्जे का मूर्ख है। क्योंकि अगर आर्य की जो वर्ड है, जिसको तुम आर्यन कहते हो, आर्य वर्ड अगर संस्कृत में यूज हुआ है तो आर्य जो है नोबल व्यक्ति के लिए किया गया है, अच्छा आदमी। सारे के सारे ये अगर सेंट्रल एशिया से आर्य वर्ड आया तो वहां पर भी तो कहीं आर्य वर्ड, उनकी तुर्की भाषा में, मंगोली भाषा में आर्य वर्ड एग्जिस्ट करना चाहिए ना। अगर वो आर्य लेके आए, वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता, सारे तो नहीं आ गए होंगे। अगर आर्यन इन्वेजन कभी हुआ तो वहां भी तो वेदों की साइन मिलने चाहिए ना, वैदिक लाइफस्टाइल का, कि यहां आके वेद का निर्माण हुआ। और जो द्रविड़ जो थे जिनको भगाया गया, अगर वो अलग थे तो फिर वेद की लाइफस्टाइल और द्रविडियंस की लाइफस्टाइल अलग होना चाहिए, इंटायरली वैदिक तो नहीं होनी चाहिए। वो वहां कैसे पहुंच गया? क्योंकि उनको तो मार के नीचे भगा दिया हमने। वेद की परिसीमा वहां कैसे पहुंच गई? जैसे शिया और सुन्नी में इस्लाम बढ़ गया, तो आज भी ईरान में शिया इस्लाम चलता है, सुन्नी नहीं चलता। तो इस तरीके की नॉनसेंसिकल कंस्ट्रक्टेड हिस्ट्री बना करके, जो आर्ग्यूमेंट विहीन है, तत्व विहीन है, इन्होंने भारत की आत्मा पे छल किया था। 76 के बाद सेक्युलरिज्म का वो ये टूल लेकर के आए कि जब वो हुआ 26/11, तो 26/11 पे भारत ने रिस्पांस नहीं दिया। मैं आपसे कतई सहमत नहीं हूं, भारत ने बहुत तगड़ा रिस्पांस दिया कि ये हिंदुओं ने किया है। दिग्विजय सिंह का जैसा लीडर आके कहता है, किताब का विमोचन करता है जमात इस्लामी के साथ, कि 26/11 हिंदुओं की साजिश, किताब भी पब्लिश हो गई, इन्वेस्टिगेशन भी कैरी आउट हो गया। अभिनव भारत में मिलिट्री के लोगों को पकड़ा इन्होंने, आप कह रहे रिएक्शन नहीं दिया। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पैरेलल ऑफ इस्लामिक जिहाद, दे क्रिएटेड अ नैरेटिव ऑफ हिंदू टेररिज्म। ये जो आप जब भी करें ना, कोई अगर ऐसा एक्टिविटी होगा जो जिहादी एक्टिविटी होगा, उसका तुरंत एक पैरेलल आपको इंडिया में आ जाएगा। किसी हिंदू ने ऐसा कर दिया वहां पे, इंडिया की थ्योरी में तुरंत आ जाएगा आपको एक पैरेलल, कि उसको ये दिखाने के लिए कि इसका रिलीजन से कंटेक्शन नहीं है, ये बेसिकली एक सोशियोलॉजिकल फिनोमेना है। आज जो आले सऊद साहब कर रहे हैं, प्रिंस सलमान साहब, भारत का तो कम्युनिस्ट पागल हो गया है। वो तो 14वीं शताब्दी का इस्लाम लाना चाहता है। इस्लाम को रिफॉर्म कर, मैं इस्लाम के उसमें कभी नहीं हूं अगेंस्ट में, इस्लाम को रिफॉर्म करने का काम, मैं बहुत बड़ा फैन हूं मोहम्मद बिन सलमान साहब का, मैं बहुत बड़ा फैन हूं मोहम्मद बिन अल जायद साहब का। उन्होंने बागेश्वर धाम को, जिनको यहाँ पे कहा गया ये ढोंगी है, तांत्रिक है, उन्होंने बुला दिया और कहा हमारे यहाँ के लेक्चर दो। डोंट यू थिंक कि उनके पास इतनी एजेंसी है कि बागेश्वर धाम के बारे में क्या लोग विचार रखते हैं? बराबर। भारत का जो इंटेलेक्चुअल मुसलमान है, ये घामड़ी के रूप में वो कहता है कि ये जो अरबों की धरती पे बन गया, ये तो प्रलय आने वाला है। हिंदू मंदिर बन गया जो, वो प्रलय लाएगा। अब तो जजिया अरब पे मंदिर बन गया। ओए उन्होंने मंदिर नहीं बनाया कोई छोटा मोटा। नॉर्मली मैं यूरोप में रहा हूं, मैं और जगह पे जाऊं, आपको ना स्ट्रक्चर बनाने नहीं देते। वो क्या कहते हैं, खाली सा गराज कोई अगर हो अबेंडेंड, कहेंगे यहाँ जाके बना लीजिए, उसमें आप अपना मंदिर अंदर
मूर्ति उर्ति रख लीजिए, स्ट्रक्चर कोई नहीं होगा, आवाज कोई नहीं होगी। मैं जाता था अफगानी हिंदू मंदिर में, जाता था जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में और भी कहीं भी, स्ट्रक्चर बनाने नहीं देते। एक दो स्ट्रक्चर हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत रेयर है। जर्मनी में एक मंदिर था, मैं गया था, जो साउथ इंडियन स्टाइल में स्ट्रक्चरली भी बना हुआ था, लेकिन वो ऐसे एक दो हैं, खुली छूट नहीं देते। जैसे यहाँ पे हर 2 कदम पे आपने जो मन करना है जी खड़ा कर दो। तो बॉटम लाइन ये कह रहा हूं मैं राहुल जी कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी है ना, इन्होंने भारत को पहली बार भारतीय दर्शन से चलाया। अभी तक ये जो सरकारें थी, ये भारत को या तो कम्युनिज्म या तो मुगलिया सल्तनत के उससे चलाती थी, खुद को ये मुगलों का वंशज बनाते थे। मणिशंकर अय्यर से जब पूछा गया राहुल गांधी के सक्सेशन के बारे में, उन्होंने कहा ये तो होता ही तो मुगलों के समय में। उन्होंने मुगलों का एग्जाम्पल दिया, प्रभु श्री राम ने दिया। तो इन्होंने ऐसा नहीं कि हमारे मुसलमान भाई बहन में प्रॉब्लम है, उनको जो पढ़ाया गया वो है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कई हिस्ट्री की जो लोग रिसर्चर है, मैं हिस्ट्री का तो हूं नहीं, उन्होंने बताया, मैंने यूट्यूब पे सुना है, दिस कैवेट मैंने कहीं पढ़ा नहीं, और कोई स्कॉलर ही बता रहे थे कि मुसलमानों ने लिख करके दिया था कि ये जगह हिंदुओं को दे दी जाए। फिर ये आए, इन्होंने मुसलमानों के कान भरे, इन्होंने मुसलमानों को लड़ाया। और मोदी जी ने कल अपने उसमें कहा, राहुल जी, कि जो अंसारी साहब थे जो लड़े, और ये भारत की ही खासियत है, व्यवस्थित, ये भारत की विशेषता है, गर्दन नहीं उड़ा दी गई इकबाल अंसारी की। 89% लोग थे चाहते गर्दन उड़ा देते और कब्जा कर लेते। इसलिए ये मंदिर हजारों हजार साल चलेगा। क्यों? क्योंकि ये तलवार से गर्दन उड़ा के नहीं ली गई। इकबाल अंसारी जी को न्योता भेजा, आइए आप। इकबाल अंसारी भी आए क्योंकि वो भारत। अब आप पहले इकबाल अंसारी को देखिए, कोई टोपी पहना देता, आजकल वो पश्तूनी टोपी उनको पहना दी, आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं इस तरीके की मूर्खता। इकबाल अंसारी को कभी देखिएगा, पहले वो पश्तूनी टोपी नहीं करते, पिछले 6-7 साल से उन्होंने पश्तूनी टोपी डालनी शुरू कर दी कि वो पश्तून से आए वो। क्योंकि यहाँ के मुसलमान को पता नहीं वो पश्तून है, वो मंगोल है, वो कौन है, वो उसी में है। वो पठानी सूट को समझता है, सारे पठान हो गए रातों रात खान। अच्छा, पठान को खान से कंफ्यूज कर जाते हैं, खान का पठान से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि खान जो पठान है उन्होंने भी खान ले लिया है तुर्कों से। खान का मतलब होता था रूलर और या पावरफुल व्यक्ति इन सेंट्रल एशिया। सो मोदी जी इज एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर विद द इंडियन फिलोसॉफिकल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। वरना राहुल जी का तो आता है जय श्री राम करते हो भूखे मर जाओगे, उनका तो क्लिप चल रहा है ना। बराबर। तो इनको समझ ही नहीं है भारत की। मैं बस ये लास्ट सेंटेंस कहता हूं, इनको भारत की समझ नहीं है। ये लोग कहते हैं भारत वो है यूनियन ऑफ स्टेट। ये हमको और आपको मराठी और हिंदी के रूप में देखते हैं। सही बात। भारत को अगर कोई जोड़ता है तो वेद जोड़ता है। जब आप शिवलिंग के सामने नतमस्तक होते हो और जब मैं यहाँ शिवलिंग के सामने नतमस्तक होता हूँ, वो हमें आपको जोड़ता है। जब आप विवाह करते समय आपका जो लोकल कस्टम है वो दूसरा है, मेरा कस्टम दूसरा है, लेकिन विवाह करते समय अग्नि के चारों फेरे होते हैं और वो ब्राह्मण पुजारी आकर के जब वैदिक मंत्र करता है, उससे मैं आपसे जुड़ जाता हूं। जिस दिन आपने वैदिक मंत्र से शादी करना छोड़ दिया, हमारा आपका अम्बिलिकल कॉर्ड कट जाएगा। हिंदुत्व भारत को एक सार पिरोता है। बिना हिंदुत्व भारत की कल्पना अक्षम्य है और अब अकल्पनीय है। जी, थैंक यू। बराबर। आज आपने इस टॉपिक पे बात करने के लिए आपका समय दिया और इतनी डिटेलिंग में बात बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर ज़रूर आपसे बात करेंगे और आपसे समय लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आप भी राहुल।